میری طرف سے جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود میں آنے کے 2 سال بعد عوامی جمہوریہ چین سال 2049 میں آزاد ہوا۔ اپنی آزادی کے بعد چین نے جس تیزی اور کمال سے ترقی کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ بات تو آج ہر شخص جانتا ہے کہ پچھلے 10-15 سالوں سے چین دنیا میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی یہی ملک ہے، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ رفتار اسی طرح برقرار رہی تو بہت جلد چین دنیا کی سپر پاور ہوگا۔ معیشت کے حوالے سے آج چین امریکہ کو مات دے چکا ہے۔ اب باری ہے چائنا کے راج کرنے کی۔ چائنا دنیا میں صرف اپنی سستی چیزوں کی بدولت مشہور نہیں ہوا، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ایک عام انسان نہیں جانتا، لیکن اگر غور کریں تو چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی بات ہو چائنا کا اتنا بڑا نام بننے کے پیچھے سچ ثابت ہوتی ہے۔ لوگ تو اس ملک کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ لوگ میز اور کرسی کو چھوڑ کر 4 ٹانگوں والی ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ چائنا کی چیزوں کے بارے میں یہ بھی کہاوت مشہور ہے کہ چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک۔ اس وقت چائنا نہ صرف دنیا میں اچھی اور معیاری چیزیں بنانے میں مقبول ہو رہا ہے، وہیں پر یہ ملک دنیا میں 2 نمبر چیزیں بنانے کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج جانی ٹی وی کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے چین کے ان دلچسپ حقائق کا جن کے بارے میں آپ لوگ عام طور پر نہیں جانتے۔ لیکن اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سبھی دوستوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ معلومات سے بھری ہوئی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں کی پہنچ سے مس نہ ہو جائے۔ چائنا کا مکمل نام پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے، یعنی عوامی جمہوریہ چین، اور تائیوان جسے دنیا تائیوان کے نام سے جانتی ہے اس کا نام جمہوریہ چین ہے۔ رشیا اور کینیڈا کے بعد 95,96,961 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ چین اس وقت دنیا میں اپنے رقبے کے اعتبار سے تیسرا بڑا ملک گنا جاتا ہے۔ اگر تائیوان اور اکسائی چین جس پر بھارت کا قبضہ ہے اس رقبے کو بھی چائنا کے رقبے میں شامل کر لیا جائے تو ایشیا کے دوسرے بڑے ملک کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کے بھی دوسرے بڑے ملک کا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت بھارت کی آبادی 1 ارب 35 کروڑ افراد ہے، جبکہ چین ابھی تک 1 ارب 40 کروڑ افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک تصور کیا جاتا ہے۔ 29.4 ٹریلین US ڈالر کی اکانومی کے ساتھ چین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے۔ اس وقت اس ملک کے شہریوں کی فی کس مجموعی آمدنی 20,667 US ڈالر کراس کر چکی ہے۔ .cn اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے، جبکہ +86 اس ملک کے کالنگ کوڈ کو کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چینی تہذیب بہت قدیم ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس کی ابتدا 6000 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ قدیم چین میں سپاہیوں کے لباس کاغذ کے بنے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ چین کا لفظ قدیم چین شاہی سلسلے سے لیا گیا ہے۔ اس سلسلے کے پہلے بادشاہ کا نام چین شی ہوانگ تھا، جو 260 قبل مسیح سے 210 قبل مسیح تک چین شاہی سلسلے کے سربراہ کے طور پر مقرر رہا تھا۔ چین خلا میں کسی انسان کو بھیجنے والا تیسرا پہلا ملک بنا تھا۔ چائنا اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا رقبہ تقریباً برابر ہے، لیکن دونوں ممالک کی آبادی میں بہت بڑا فرق ہے۔ چین کی آبادی تقریباً امریکہ کی آبادی سے 4 گنا زیادہ ہے۔ آپ نے آج تک دنیا میں پانی کی بوتل بکتی دیکھی بھی ہوگی اور اسے خریدا بھی ہوگا اور پی کر بھی دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے شاید کبھی ہوا کو بکتے نہیں دیکھا ہو، اور نہ ہی آپ نے کبھی ایسا سوچا ہوگا کہ ہوا بھی بک سکتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہمسائے ملک چین میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا میں گندگی پھیلانے والے، خاص طور پر ہوا میں زہریلے مواد ملا کر ہوا کو خراب کرنے والے ممالک میں چین کا پہلا نمبر آتا ہے۔ اگر آپ کبھی چائنا ٹور پر جائیں تو آپ کو وہاں کے ماحول میں سانس لے کر اس بات کی سچائی کا خود ہی علم ہو جائے گا کہ وہاں رہنے والے لوگ اکثر منہ پر ماسک چڑھا کر گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ چائنا کے دارالحکومت بیجنگ شہر میں ایک دن سانس لینا 1 پیکٹ سگریٹ پینے کے برابر ہے۔ اسی کے سبب چائنا میں سانس لینے کے لیے صاف ہوا گیس بوتلز کی صورت میں بکتی ہے۔ ہوا کی ایک بوتل کی قیمت لگ بھگ 5 یوان ہوتی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے چین میں تعمیراتی کام دنیا کے دوسرے ممالک سے قدرے زیادہ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے پچھلے 100 سالوں میں جتنا سیمنٹ کا استعمال کیا ہے، چین نے 2011 سے 2013 کے درمیان یعنی صرف 3 سالوں میں اس سے زیادہ کا سیمنٹ استعمال کیا ہے۔
चीन ने इन 3 सालों के दौरान 6,615 मिलियन टन सीमेंट का इस्तेमाल किया था। ये इस्तेमाल इतना ज्यादा है कि दुनिया के कई ममालिक में मुसलसल तामीराती काम अगर कई साल तक मुसलसल चलता रहे तो तब भी इतना ज्यादा सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होगा। दोस्तों, चीन में काकरोच, मगरमच्छ, कुत्ते, बिल्लियां, सांप और बहुत से दूसरे कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। चाइना के लोग हर साल डॉग मीट फेस्टिवल मनाते हैं, मगर इस डॉग मीट फेस्टिवल में इन कुत्तों और बिल्लियों को सभी गैर मुस्लिम चीनी नहीं खाते, बल्कि चीनी कौम का एक मखसूस तबका है जो इन जानवरों को बतौर खुराक इस्तेमाल करता है। वगरना ज्यादातर चीनी लोग हमारी तरह ही सब्जियां, चिकन, मीट और फिश खाने के शौकीन होते हैं। बस हम में और इनमें फर्क ये है कि हम हलाल खाते हैं और वो इन्हीं चीजों को हराम अंदाज से खाते हैं। चाइना का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां के लोग डिप्रेशन हालात से तंग या दूसरी वजूहात की बिना पर खुदकुशी करने को तरजीह देते हैं। चीन में औसतन हर साल 1 लाख अफराद में से 10 अफराद खुदकुशी करते हैं। अगर चीन की कुल आबादी के साथ इस तनासब को देखा जाए तो एक साल में खुदकुशी करने वाले अफराद की तादाद 1,40,000 होती है और इन सुसाइड करने वाले अफराद में ज्यादा तादाद खवातीन की होती है। यही वजह है कि चाइना जैसे मुल्क में नदी नालों से खुदकुशी किए जाने वाले अफराद की लाशें निकालने का काम बतौर नौकरी आपको मिल जाता है। चीन में बढ़ती हुई आबादी की वजह से हुकूमत ने चंद साल पहले एक बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा करना एक जुर्म करार दिया था। अवाम के मनफी रद्द अमल से हुकूमत ने इस शर्त को एक बच्चे से 2 बच्चों में तब्दील कर दिया। अब चाइना में लोगों की सूरत हाल ये है कि वो 2 बच्चों का नाम का अंदराज सरकारी सतह पर करवा रहे हैं और बाकी पैदा होने वाले बच्चे सरकारी सतह पर रजिस्टर नहीं करवाए जाते, जिनका आने वाले वक्त में इन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। दोस्तों, दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद आज भी चीन में 30 करोड़ के लगभग ऐसे लोग बसते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। ये लोग झोंपड़ियों और गारों में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। चाइना में गुर्बत का ये हाल है कि लगभग 1/3 आबादी ऐसी है जो रोजाना का $1 से $2 बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। गुर्बत के मारे इन लोगों में अगयोर का वो इलाका है जहां ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, जहां ना तो चीनी हुकूमत फलाह बहबूद पर ज्यादा रुपया पैसा खर्च करती है और ना वहां के लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं। हुकूमत ने मुसलमानों की आजादी की तहरीक को खत्म करने के लिए इस इलाके के नौजवानों को नशे जैसी गंदी लत लगा रखी है। ये भी एक हकीकत है, मगर है एक इंतहाई तल्ख हकीकत कि जितना जुल्म चीन पाकिस्तान के साथ मुंसलिक मुसलमानों के सूबों, जिनका माजी में मशरकी तुर्किस्तान के नाम से एक अपना वतन होता था, उन पर करता है, शायद इतना जुल्म भारत कश्मीर और इसराइल फलस्तीन पर भी नहीं करता होगा। मगर हमारे पाकिस्तान के मीडिया में इतनी जुर्रत नहीं है कि चीन के इस घिनौने अमल को दुनिया के सामने बेनकाब करे। ये एक हकीकत है कि अगर आपके पास DSLR या बड़ा कैमरा है तो मुसलमानों के इस सूबों में आपसे या तो कैमरा छीन लिया जाएगा या इसका मेमोरी कार्ड निकाल लिया जाएगा या आपसे वहां की बनाई हुई वीडियोस को डिलीट करवा दिया जाएगा। और इन सब को करने के लिए आपको चीनी फौज की तरफ से हुक्म होगा। इन इलाकों में मुसलमानों पर इंतहाई इखलाक से घिरी हुई सजाओं की वीडियोस तो मौजूद हैं, मगर हम आपको ये वीडियोस दिखा नहीं सकते, वगरना YouTube इन वीडियो को डिलीट कर देगा। दोस्तों, चीन के बारे में जहां दिलचस्प हकायक की बात हो रही है, वहीं एक सच ये भी है कि पूरी दुनिया में आपको जितने भी सफेद पांडा नजर आएंगे वो चीनी हुकूमत की मलकियत होंगे, क्योंकि चीनी हुकूमत ने दुनिया भर के सफेद पांडाज को खरीद रखा है और इन जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी भी चीनी हुकूमत पर आयद होती है। चीन की मौजूदा आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है। यही वजह है कि औसतन चीन में हर 10 सेकंड के दरमियान एक नए बच्चे की पैदाइश होती है। दोस्तों, चीन की तरक्की के राजों में एक राज ये भी है कि चीन के लोग तालीम के निसाब के लिए अपनी चीनी जुबान को सिलेक्ट करते हैं। यही वजह है कि चीन में आला तालीम हासिल करना यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कदरे सस्ता पड़ता है। दूसरा, मुकामी जुबान में निसाब का ये फायदा होता है कि इंसान जो कुछ भी पढ़ता है वो इस बात की गहराई तक चला जाता है। हमारे यहाँ अगर निसाब हमारा कौमी जुबान में हो जाए तो इंजीनियर पैदा करना, डॉक्टर पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो ये भी जान लीजिए कि चीन को बैंककारी का निजाम सेट करके देने में पाकिस्तान के नेशनल बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। आजादी के बाद पाकिस्तान और चीन का दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुआ तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चीन में बैंककारी का निजाम बेहतर करने के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम दी थी।
चीन की तरक्की का एक राज ये भी है कि मजदूरों और अफसरों को एक जैसा खाना खाने के लिए पाबंद किया जाता है। हमारी तरह ये नहीं कि अफसरों के लिए शाही खाने और मजदूरों के लिए हल्का और घटिया खाना। चीनी लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती की वजूहात में एक वजह यह भी है कि ये लोग हमेशा नीम गर्म या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पांडा चीन का कौमी जानवर होने का एजाज रखता है। कूंज को चीन का कौमी परिंदा कहा जाता है। पंखे की जैसी पत्तियों वाला जंगी बेलूबा नामी इस मुल्क का कौमी दरख्त है। चेरी के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल होने का एजाज हासिल है। चाइना ने आज तक किसी भी खेल को अपनी कौमी खेल का दर्जा नहीं दिया, मगर फुटबॉल, बैडमिंटन, बैंडी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, आइस हॉकी, क्रिकेट, रग्बी और मोटर स्पोर्ट के अलावा दसियों ऐसी खेलें हैं जो इस मुल्क में बहुत शौक से खेली और देखी जाती हैं। दोस्तों, चीन में चोरी की सजा मौत है। चीन में चोर के सर में गोली मार दी जाती है, जिसका मुआवजा भी इसके घर वालों से वसूल किया जाता है। जब तक वुरसा लाश को मारी जाने वाली गोली का मुआवजा नहीं देते, उन्हें उस वक्त तक लाश को ले जाने की इजाजत नहीं होती। चीन को इंतजामी तौर पर 34 हिस्सों में तकसीम किया गया है। चीन के कुल 22 सूबे हैं, 4 बल्दियात हैं यानी वफाकी हुकूमत के जेरे इंतजाम इलाके, ऐसे जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद है। 5 खुद मुख्तार इलाके हैं, जिनमें सेंक्यांग यानी अगयोर मुसलमानों का इलाका, मंगोलों का चीन के जेरे असर इलाका, तिब्बती लोगों के लिए तिब्बत का इलाका, हुई लोगों के लिए नेंगेशिया का इलाका और जोंग लोगों के लिए गुआंगशंगी का इलाका खुद मुख्तार इलाके हैं। जबकि हांगकांग और मकाओ जैसे 2 खुसूसी इंतजामी इलाके भी चीन के साथ शामिल हैं। चीन के 97% नौजवान चीन में ही आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि चीन का तालीमी निज़ाम दुनिया के दूसरे ममालिक से बेहतर भी है और सस्ता भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि तालीम हासिल करो, खा तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से ये भी जाहिर होता है कि चीन माजी में तालीम के मैदान में दूसरे ममालिक से आगे था और आज भी ये एक हकीकत है। दोस्तों, युआन चीन की कौमी करेंसी को कहा जाता है। इनका एक युआन इस वक्त 27.96 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 11.79 भारतीय रुपयों के बराबर है। चीन की करेंसी सिर्फ चीन में ही इस्तेमाल नहीं होती। शुमाली कोरिया, म्यांमार यानी बर्मा, लाओस, कैम्बोडिया, नेपाल, चाइना और वियतनाम के सरहदी इलाकों के अलावा जिम्बाब्वे जैसे ममालिक में भी अच्छी खासी इस्तेमाल होती है। जबकि चीन के ही जेली इलाकों मकाओ और हांगकांग में इस करेंसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। दोस्तों, चीन की सरहदें इस वक्त 22,000 से ज्यादा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई हैं। दुनिया के इस वक्त लगभग 14 ममालिक से चीन की सरहदें मिलती हैं। दुनिया में चीन और रूस 2 ऐसे मुल्क हैं जिनकी सरहदें दुनिया के दूसरे ममालिक में सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ टच करती हैं। ये दोनों ममालिक दुनिया के 14 मुल्कों से अपनी सरहदें साझी करते हैं। सहराए गोबी से लेकर सहराए तकला मकान तक, हिमालय से लेकर कराकरम तक, पामीर से लेकर त्यान शान तक, ये मुल्क पहाड़ी सिलसिलों में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज से 20 साल पहले चाइना में लगभग 50,000 के लगभग दरिया बहते थे, मगर आज 28,000 दरिया ऐसे हैं जो सूख चुके हैं। चाइना दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा डैम तामीर करने वाला मुल्क है। इस मुल्क में तामीर किए गए कुल डैम्स की तादाद 87,000 से जायद है। ये मुल्क अपनी बिजली की तकरीबन ज्यादातर जरूरत को पानी से पैदा करता है। इस मुल्क में कुल झीलों की तादाद लगभग 24,800 के करीब है। चीन के कुल रकबे के 18% हिस्से पर जंगलात का बसेरा है, जो हजारों किस्म के जानवर और परिंदों का मस्कन भी है। चीन में इस वक्त 50,000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं। चीन के शहर शंघाई में इस वक्त 35,000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, जो दुनिया के किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा होंगी। चीन में बेरोजगारी की शरह 5% है। चीन में मीडिया आजाद नहीं है। मीडिया को हुकूमत और अदारों के खिलाफ बात करने की इजाजत हासिल नहीं होती। यही वजह है कि चीन की तरक्की की एक वजह यह भी है, जब बाहरी दुनिया के लोगों को किसी मुल्क में अमन नजर आता है तो गैर मुल्की कारोबारी शख्सियात वहां कारोबार करने को तरजीह देती हैं। जब एक मुल्क की आलमी सतह पर दहशतगर्द, गरीब मुल्क और धमाकों का मारा मुल्क के तौर पर पहचान बनी हो, भला उस मुल्क में कारोबारी हजरात कैसे आएंगे? इस बात का आप फैसला खुद कीजिए। चाइना पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 3 घंटे आगे है।
दोस्तों, चीन में जाने के लिए पाकिस्तानियों और भारतीयों को वीजे की जरूरत होती है। भारतीयों को चीन का विजिट वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है, जबकि पाकिस्तानियों के लिए चीन का विजिट वीजा दस्तयाब नहीं होता। बल्कि अक्सर पाकिस्तानी चीन में सैर की गर्ज से तो जाते हैं, मगर वो बिजनेस वीजा लगवाकर चीन जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में विजिट वीजा एक ग्रुप की शक्ल में दस्तयाब होता है। एक सोलो ट्रैवलर के लिए चीन का विजिट वीजा बिल्कुल दस्तयाब नहीं होता। दोस्तों, चीन किन चीजों में दुनिया में सबसे आगे है, वो कौन से कारोबार और कौन सी वजूहात हैं जिनमें चीन ने बाकी दुनिया को पीछे छोड़ रखा है, ये सभी बातें आपके साथ होंगी मगर चीन के बारे में बनाई जाने वाली अगली वीडियो में। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अकारब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए कमेंट करते हुए मुझे अपनी राय से जरूर आगाह रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।